learning our second chapter, which is microorganism. As the term interprets that micro means chota, okay, or organism, just like living organism is microorganism. Okay, so as we all know, there are in this world we have large as much as whale till we have some little microscopic organism also. So we will be studying them today in this chapter. Major group of microorganisms. Microorganisms, as you know, they can't be seen through our naked eyes. We need some special lens like microscope to view them. Okay. So these are the following types of microorganisms. Bacteria. These are single cell. These are, when being compared, these are larger than the virus. Okay. There are three types: rod, spherical, and spiral. So as the term interprets, the rod shape must be like this. Okay. This is rod shape. While when we talk about spherical, it is circular in shape, and spiral in this shape. Okay. So these are the three types of bacteria. Now moving next, which is fungi. Fungi is unicellular. Unicellular means that this uni means one. Okay. And cell means single cell. These are single cell as well as multicellular. Here bacteria was just single cell. Now fungi can be unicellular or multicellular, made up of single cell or more than one cell. So single cell is yeast. This is used while making bread, while multicellular is bread mold. Okay. How they get the nutrition? They have feed on decaying matter or on the living organism. Like they have feed on the decaying, like सड़े गले पे feed करते हैं for their nutrition, while many of them live on the living organism for their nutrition. Okay. Was fungi. Now the next is algae. Algae can be either unicellular, that is made up of single cell, or multicellular, like Spirogyra and Chlamydomonas. Chlamydomonas is single cell, while multicellular is Spirogyra. They are green, so when it comes to like green, they are autotrophic. They make their own food by the process of photosynthesis. Okay, so they don't need to depend on any other living organism for their nutrition. Next is protozoa. Single cell is named as protozoan. So they are also only unicellular and cannot prepare their own food. Means they depend on other for their nutrition. Made them heterotrophic. While examples are amoeba and paramecium. We have seen amoeba. This is amoeba. So this is all, as we know, amoeba is single cell. So it's example of protozoa. Next is virus. This is the smallest among all these. They are not cell made, they are genetic material. They don't have genetic material. Outside they depend on the living organism. Okay, outside living organism just they are in decaying. Okay, they does not do any process. While once they get into the any body, they get their nutrition and made up of genetic material. They need to enter the living host. So they need host for their nutrition. Otherwise outside they won't last. Okay. Next is we will be studying where do microorganisms live. So where all these microorganisms live. So they are immortal and omnipresent. Okay, they are present everywhere in this world. Okay, they are in living water. They are even the hot streams that may cross more than 100 degrees Celsius. Even there also we have found some microorganisms. So they are present on rocky areas. They are on rivers. They are on rocks and everywhere. Okay. So the next is useful microorganisms. There, apart from all these, many of the microorganisms are useful. We use them in our daily basis also. Like making of bread. Making of bread involves bacteria. Okay. Now the next is curd. We use lactobacillus for making curd. It converts the lactose of milk into lactobacillus by the help of lactobacillus bacteria. Many alcohol, vinegar and wine production also requires the presence of microorganisms. So this is how they are useful. Apart from being harmful, there are some microorganisms that helps us in making food or in making antiseptics, and this is how they help us. Good morning students. As till yet we have studied about how microorganisms are helpful in our day-to-day life, what food items are prepared through them. So in 8th class science we will move on to the topic
in agriculture to increase soil fertility. So these are the, till yet we have studied, like we produce a number of food items from microorganisms. They are like curd, yeast and vinegar, wine. So now we move how they are helpful in increasing the soil fertility. So as we know that there are certain microorganisms that found in the roots of the legumes like of pea, bean and gram. They fix the nitrogen present in the atmosphere to the nitrogen that can be consumed by the plants. Okay, so they fix the nitrogen present in the atmosphere to the plant consuming nitrogen. Okay, so this process is known as nitrogen fixation. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, उस नाइट्रोजन को प्लांट कंज्यूम कर सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन. देयर आर नंबर ऑफ फूड आइटम्स दैट वी इनटेक लाइक मशरूम. वी हैव ईटन मशरूम्स, like they are fungi. Okay, now yeast that we use for bread. Seaweeds are mainly not in India, but in Japan and China people consume seaweeds. Okay, they are also algae, and certain algae that are also being consumed by the fishes and sea animals. Okay, so this is how the microorganisms are sources of food as well. Now moving next, role of microorganism in decomposition and cleaning the environment. किस तरह से माइक्रोऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखते हैं. दे बेसिकली कंज्यूम और डिकम्पोज द प्लांट. सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिकेज या डेड और डिकिंग प्लांट और या एनिमल्स होते हैं उन पे फीड करते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं. डिकम्पोज करके वो सॉइल में मैन्योर की तरफ हो जाते हैं. तो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिकेइंग या फिर रिमेन्स को, जैसे रिमेन्स हो गए फीकल मेटल, उस पे भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ. फिर क्या कर रहे हैं, कचरा साफ कर देते हैं पूरे जो एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, ताकि उससे कोई बीमारी ना फैले. द नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन इन सीवेज ट्रीटमेंट. एज वी नो बायोगैस अपन थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या आता है कि बायोगैस क्या होता है, काऊ डंग और प्लांट मटेरियल वेस्ट को एक कंटेनर में डाल देते हैं और उसको लिड से ढक देते हैं. तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती. तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया विच वर्क्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वर्क्स एंड प्रोड्यूसेस मीथेन गैस, जो कि फिर बाद में एज अ कुकिंग गैस यूज करी जा सकती है. सो दिस इज हाउ. तो उसमें क्या होता है, मीथेन वो जो काऊ डंग और प्लांट मटेरियल है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, बायोगैस में. गैस मीथेन गैस इवॉल्व होती है, डिकम्पोजिशन होता है, तो उससे फिर कुकिंग गैस प्रोड्यूस हो जाती है. सो दीज आर द फॉलोइंग वेज हाउ microorganisms helps in cleaning the environment and are helpful as a food or as a providing biogas to us. So after studying different benefits and characteristics of microorganism, we will be moving forward to making of antibiotic. Like preparation of antibiotic also requires the presence of many microorganisms. So firstly, what do you mean by antibiotics? Antibiotics are which are chemical substance produced by microorganisms such as fungi and bacteria which kills or stops the growth of disease causing of microorganism. Like कोई बीमारी और उससे बचने के लिए जो यूज की जाती है उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, यानी अगेंस्ट द लाइफ ऑफ विच द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. किसी भी तरह की जो डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं उनसे बचने के लिए अपन एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो कि प्रिवेंट करता है. न्यूमरस ऑफ एंटीबायोटिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड. द फर्स्ट ऑफ इज पेनिसिलिन. नाउडेज एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ डिजीज. So the next is vaccine. Vaccine क्या होता है, वैक्सीन आर द सब्सटेंस यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू द डिजीज. किसी भी जैसे बीमारी से बचने के लिए अपन पहले वैक्सीन ले लेते हैं, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. इम्यूनिटी क्या होती है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं. इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट. जैसे कोई भी बीमारी ना हो इसके लिए इम्यूनिटी ज़रूरी है. तो क्या होता है, उससे वो फाइट कर लेते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ना जिनसे, उनसे फाइट कर लेते हैं. तो इम्यूनिटी बनाने के लिए अपन लेते हैं वैक्सीन. ठीक है, वैक्सीन. जैसे कि अभी कोरोना वायरस काफ़ी फैल रखा है, तो कोरोना वायरस की भी वैक्सीन आएगी, तो उससे फिर कोरोना वायरस नहीं होगा. ठीक है, ताकि बॉडी इम्यूनिटी बना लेगी और फाइट कर लेगी उस कोरोना वायरस से. द नेक्स्ट आर द
कोई भी जब डिजीज कॉजिंग माइक्रो बॉडी में एंटर करता है तो क्या क्या प्रोसेस होती है? 2 प्रोसेस होती है। जैसे कि अपन जानते हैं WBC जो होते हैं वो इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर्स, इन्वेडिंग बैक्टीरिया, मतलब जो कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो हाउ इट गोज, फर्स्टली क्या होता है, द वाइट ब्लड सेल अप्रोचेज, ये है वो डिजीज कॉजिंग वायरस, और ये अपने WBC, ठीक है। तो क्या होता है, द WBC अप्रोचेज द माइक्रोब्स, सबसे पहले माइक्रोब्स को ऐसे पास में जाते हैं, फिर उसको इट सराउंड्स द माइक्रोब, ऐसे घेर लेते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद इट डिस्ट्रॉयज, उसको घेर के और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स गोज। ये तो हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है कि एंटीबॉडीज बना लेते हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। इन्वेडर यानी जो बाहर से जो बैक्टीरिया आते हैं उनसे। एंटीबॉडी सराउंड द इन्वेडर माइक्रोब एंड ईट इट। सबसे पहले क्या होता है, WBC होते हैं, ये एंटीबॉडीज छोड़ते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको घेर लेते हैं। इट सराउंड्स द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो सराउंड कर लेते हैं माइक्रोब को, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इट सराउंड एंड WBC जो है वो उसको ईट इट, खा जाता है, ठीक है। तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, शरीर में। सो दिस इज हाउ थिंग्स गोज व्हेन एन external disease causing virus enters into our body. The next is disease causing microorganism in human, pathogen and pathogens क्या होता है, disease causes virus, okay, disease causing virus। तो pathogens कैसे enter करते हैं, through the air we breathe, अपनी सांसों से जा सकते हैं, through the food we eat, वो कॉलेरा होता है, थ्रू द ये डिफरेंट डिजीजेस बता रखी है किस मीन से फैलती है, लाइक एयर से फैलती है कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, वहीं पर फूड से फैलती है कॉलेरा, और वाटर से भी कॉलेरा, थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से फैलते हैं मिसेल, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, थ्रू कैरीज सच एज इंसेक्ट, और इनसे मस्कीटो, और इन सब से क्या होता है, मलेरिया, जैसा कि अपन जानते हैं मस्कीटो से ना मलेरिया होता है, एडीज से डेंगू होता है। So these are the following diseases, their mode of transmission and general preventive measures। जैसे कि क्या है, कॉलेरा कैसे फैलता है, वाटर और फूड से, टाइफाइड एयर से, ट्यूबरकुलोसिस एयर, वायरसेस जो मिसेल होते हैं वो एयर से। तो क्या क्या जनरल प्रिवेंटिव मेजर है, गर्म पानी पिएं, अच्छा खाना खाएं, मेंटेन्स गुड सैनिटेशन, कीप पर्सनल आर्टिकल्स ऑफ द पेशेंट अवे, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहें, गेट वैक्सीनेटेड प्रॉपर, कीप द पेशेंट एंड इट्स पर्सनल आर्टिकल कंप्लीट आइसोलेशन, इन्फेक्टेड पर्सन के जो भी ऑब्जेक्ट्स या वस्तु हों उससे दूर रखें, कीप द पेशेंट एंड इट्स पर्सनल आर्टिकल, यही है, इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहें, वही मोस्टली चीज़ है। वहीं मलेरिया का क्या कारण है, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट, क्योंकि वाटर में वो एग देते हैं, ब्रीडिंग प्रिवेंट करें, स्प्रे कैरोसिन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पे कैरोसिन स्प्रेड कर देंगे तो वो अपने एग ले नहीं कर पाएंगे, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट, ओके, टू प्रिवेंट दीज। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब फूड को खराब होने से बचा के रखना। इफ फूड इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिफोर इट इज ईटन इट गेट स्पॉइल्ड, खराब हो जाता है। तो उसको ये किस वजह से खराब होता है, इट इज ऑक्सीडाइज बाय एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट एक्टेड अपॉन डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। नाउ वी विल लर्न अबाउट सर्टेन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब किससे पता चलता है कि फूड खाने योग्य है या फिर खराब हो चुका है। सैंपल गिवन ऑफ फूड इज गुड और बैड फॉर कंजप्शन। सबसे पहला ओडर, ओडर यानी महक, जो बदबू उसमें से आती है अगर खराब हो जाता है, फाउल स्मेल आती है तो वो होता है खराब। टेस्ट बैड, अगर खारा और खट्टा हो जाए तो फिर वो खराब हो चुका होता है। जैसे मिल्क सोरिंग टेक प्लेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बन जाता है तो कई बार दूध फट जाता है। कलर, मैनी फूड आइटम शो चेंज इन कलर, कई बार फूड आइटम्स में चेंज ऑफ कलर हो जाता है। सो द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रिवेंटेड इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। फूड को बचाने के लिए अपन जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। सो अब नाउ वी विल लर्न अबाउट द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। व्हाट आर द मेथड्स? फर्स्टली इट्स ड्राइंग। सो क्या होगा, ड्राइंग में क्या होता है, डिहाइड्रेशन, मतलब वो रिमूवल ऑफ वाटर और इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो जो मैटर है, फूड मेटल है, उसमें से रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई भी चीज़ ड्राई हो जाती है जैसे कि चिप्स
पोटैटो चिप्स, तो वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर करे जा सकते हैं. अनदर फूड आइटम्स आर सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनेच, कॉलीफ्लावर्स, मेथी लीव्स एंड स्पाइसेस आर ड्राइड. जो भी अपने मसाले होते हैं वो सारे ड्राइड होते हैं, तो वो लंबे समय तक रखे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज बॉइलिंग. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस. फूड आइटम्स लाइक मिल्क एंड वाटर आर प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग. दूध गर्म करते हैं सबसे पहले आते ही, ताकि उसको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सके. बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यू मे हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर स्टोरिंग इट. मिल्क को स्टोर करने से पहले गर्म किया जाता है रोज. रेफ्रिजरेशन. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस. वी ऑल हैव रेफ्रिजरेटर्स इन आवर हाउस. लाइक बॉइलिंग एंड कूलिंग रेफ्रिजरेटर, फ्रीजिंग ऑल्सो हेल्प्स. कई चीज़ जैसे ख़राब होने से बचाने के लिए, जैसे सब्जियां या कुछ खाने का आइटम, तो उसको अपन क्या करते हैं, उसमें रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में. सही है. द नेक्स्ट इज पैस्चराइजेशन. पैस्चराइजेशन का मतलब होता है, ये मिल्क के लिए किया जाता है. दिस मेथड इज यूज टू प्रिजर्व मिल्क. इन दिस मेथड सबसे पहले दूध को गर्म कर दिया जाता है, ठीक है, फिर उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, ताकि दूध में फिर उसको, जैसे अपने ये पैक्ड मिल्क आता है जो अमूल और इन सब का बॉटल्स या फिर उसमें पॉलीथीन बैग्स में, तो उसको कैसे किया जाता है, सबसे पहले बहुत तेज़ गर्म कर दिया जाता है और उसको तुरंत फिर कूल किया जाता है. तो ऐसे करके उसको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है. हीटिंग क्या होता है, हीटिंग किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क. क्विकली कूलिंग प्रिवेंट्स द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग. ठीक है. दीज आर द पैस्चराइजेशन. यू डोंट नीड टू फॉरगेट दिस, इट्स इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर. थिंग्स लाइक ऑयल we add beside salt and sugar, spices, oil, and this all also act as preservative. Salting किस में की जाती है, पिकल में, आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड, मीट एंड फिशेज में. वहीं अगर अपन बात करें शुगर की, तो वो जैम और सॉस और जेली में होता है, उनमें शुगर ऐड करके प्रिजर्वेटिव की जाती है. वहीं पे सॉल्टिंग कहाँ कहाँ होती है, मीट, फिश, आंवला, पिकल, अचार जो हम डालते हैं. नेक्स्ट इज यूज ऑफ केमिकल्स. कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिनसे प्रिजर्वेटिव्स किया जाता है, जैसे कि जैम, स्क्वॉशेस और केचप्स में कौन सा केमिकल डलता है, सोडियम बेंजोनेट एंड पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट्स. नेक्स्ट इज कैनिंग. फूड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन कैन्स विच आर सील्ड विथ हीटेड टू दिस. ये जितने भी कैन फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि जूसेस और ये, इनको ऐसे स्टोर किया जाता है. कैन फूड आइटम कैन रिमेन गुड एट टू ईयर फॉर ईयर्स. It can, and cans are not damaged. Dry fruits and vegetables are preserved by this method. Now, what happens if food is not preserved properly? तो अगर food properly preserve नहीं होगा तो वो खराब हो जाएगा. तो उसमें क्या क्या नुकसान होते हैं. Consumption of food with item which is not preserved properly can lead to food poisoning. हो सकती है diarrhea, vomiting, abdominal pain are the common symptoms of food poisonings. कौन कौन से बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया एंड फंजस, ये सैलेमोनेला एंड एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम causes food poisoning. They produce toxins in the food item in which they grow. That's it.